Every act of service has a story. Every story has the power to inspire. In a world that is always rushing forward, we pause to listen, to learn, and to lead with purpose. Here, conversations go beyond words. They ignite compassion, leadership, and change. This is True Rotarian, where service meets storytelling. I am Hemant Bhasin. Thank you for being part of this journey. Let's begin. Hello and welcome to True Rotarian Podcast, a podcast where we talk about building strong societies, helping underprivileged members of our society. Ladies and gentlemen, today's podcast is about compassion. It's about system. It's about legacy. When we speak of animal welfare, we often think rescue and care. But really, do we talk about systems? How compassion can scale and sustain? Our guests today represent a uniquely Indian and deeply humane experiment where healthcare, animal care, environment, and community development are not separate subjects, but they are interconnected part of the same ecosystem. We have with us Mrs. Anshu Gupta, a pioneering voice for the voiceless and the force behind Devashraya Animal Hospital and Sarvodaya Foundation. Ma'am, welcome to the podcast. Thank you. Thank you. And with her, we have a very dynamic personality, Dr. Rakesh Gupta, who is a physician and institution builder. He's got a huge hospital and systems thinker whose work links medicine's quality, community, and Rotary. Together, they represent a new model of leadership where compassion is matched with design and welfare evolves into regeneration. Anshu ji and Rakesh ji, welcome to True Rotarian Podcast. Namaskar. Thank you. You are doing such a wonderful job, ma'am. It's really, you are an inspiration to a lot of people. So, sir, let's start with you. You started this journey of building such a huge, massive hospital. From there, it started. Please give us a little bit about your journey in Sarvodaya. See, first of all, thank you very much for inviting us to this podcast. हमारी जर्नी को बहुत बड़ी तो नहीं है. Humble beginning से शुरू हुए थे. I graduated in 1988 or so and started my clinical practice. And then we gradually built it up. We evolved with the healthcare. 1990 में healthcare बहुत ज़्यादा evolved नहीं थी. You understand that part. But as the healthcare evolved, we also evolved and progressed. Today we are having a chain of hospitals where we provide primary, secondary and tertiary care to all the community around us. And we are specializing into many systems today, whatever the community needs from us. That's in brief about our journey. Wow. Ma'am, when did your journey started in taking care of voiceless? थैंक यू वेरी मच हेमंत जी. पहले तो आपने जो आज ये अवसर दिया मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मेरे अपने इनिशिएटिव्स को बताने के लिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा पैशन या ये लव जो है मेरे को मेरे बचपन से ही है. और ये सब मुझे मेरी अपब्रिंगिंग में मुझे अपने पेरेंट्स से मेरे को मिला. मेरे पेरेंट्स को एनिमल से बहुत प्यार था. शुरू से बचपन से जब मैं देखा तो मेरे फादर का जब दिन शुरू होता था तो वो चिड़ियों को छत पर दाना डालने जाते थे. मम्मी किचन में काम स्टार्ट करती थी तो सबसे पहले गाय की रोटी बनती थी. अब हमारे घर पे कोई पशु शायद ही कभी भूखा जाता था. तो ये प्यार जो एनिमल से है वो बचपन से ही है. जैसे कि आपने बोला कि आपके पेरेंट्स भी वही काम करते थे कि जो आप कर रहे हैं, जो कि ट्रू सनातनी करता है. एक्चुअली ट्रू सनातनी और जो हमारे वेद हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसके अंदर हमको सिखाया गया है कि
to give it back to the society, to help people. दान करो, लाइक यू सेड कि पहली रोटी गाय के लिए बनती थी. इवन आई से द सेम थिंग ऑन माई पॉडकास्ट. बहुत बारी बात करता हूँ मैंने खुद ही देखा कि मैंने दादी पहली बुरकी जो होती थी वो कौवे के लिए साइड में रख लेती थी. व्हाट अ वंडरफुल journey you started at a very young age, and you are taking it forward, because taking care of voiceless and seeing those souls suffer and helping them, understanding their pain, is something not many people can do. जैसे कि आपने पूछा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि नदियों को कौन बताता है समुंदर का रास्ता, इंसान खुद ढूंढता है इंसानियत से वास्ता. तो ये जो पेन की आप बात कहते हैं कि अपने आसपास इतने सारे इंसिडेंट्स मैंने अपनी लाइफ में देखा. हम लोग 19 सेक्टर में रहते थे, मैं मार्केट जा रही थी, मैंने एक डॉग को देखा, उसकी गले में लकड़ी फंसी हुई थी. बच्चे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उसको हेल्प करें. तो मैंने फिर अपने ही हॉस्पिटल से कुछ लोगों को लगा के उस लकड़ी को निकाला. वो दर्द से बिल्कुल करा रहा था. तो लगा कि कोई अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए. कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, कोई इस तरीके का नॉलेज नहीं था कि अगर ऐसी कोई, अगर दर्द में कोई एनिमल कोई इंजर्ड है, बीमार है, तो किसको कांटेक्ट किया जाए. फिर इसके बाद मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो एक गाय का बछड़ा था, उसको ट्रक ने टक्कर मारा तो उसके पैरों पे से पहिया गुजरा. वो बिल्कुल लहूलुहान था. वहाँ आसपास इतनी भीड़ थी, सब लोग उसको हेल्प करना चाहते थे कि तो सब लोग हेल्पलेस थे. तो इन सबको देखते हुए ऐसा फील हुआ कि हमारे को एक बहुत बड़ी ज़रूरत है अपने समाज में इनके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा केयर सेंटर, शेल्टर्स जैसी व्यवस्था बनाने की. राकेश जी ने स्टार्ट किया इतना बड़ा सर्वोदया हॉस्पिटल. आज एक वो ब्रांड है और एक आज की डेट के ऊपर पीपल फील वेरी कंफर्टेबल विद अ ह्यूज मेडिकल फैसिलिटी विच इज़ अवेलेबल इन फरीदाबाद एंड अदर प्लेसेस. सो your journey must have been inspired by Rakesh ji also, because he was looking after the human beings and you decided to look after the voiceless souls, as I say. ये मेरे लिए बहुत ही कहना चाहूँगी इसके लिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे को जिस तरह से मेरे पेरेंट्स का मेरे को जीवन में रोल है, उतना ही अच्छा रोल मेरे लिए मेरे साथ मेरे हस्बैंड का है, डॉक्टर गुप्ता का. और जितना सॉफ्ट हार्ट मेरा है उतना ही सॉफ्ट हार्ट इनका भी है. तो मैंने जब इन वॉइसलेस के लिए काम करना स्टार्ट किया तो मुझे इनकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिला. और आज जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ वो इनकी सपोर्ट से कर पा रही हूँ. सर आप बताएं, देवाश्रय मॉडल जो है जॉइंट इकोसिस्टम पे काम करता है, करेक्ट? इसके बारे में कुछ आप बताइए. देखिए, ये ब्रेन चाइल्ड एब्सोल्युटली अंशु का है. और दरअसल जो उसने बताया कि जब एनिमल तकलीफ़ में होता है तो कहीं मदद मिलती नहीं है. सरकारी लेवल पे कुछ एनिमल हॉस्पिटल्स होते हैं, वो बाय एंड लार्ज पर लार्ज एनिमल्स होते हैं जिसमें काऊ, बफेलो और ये चीज़ें होती हैं. इंजर्ड स्मॉल एनिमल्स के लिए कोई व्यवस्था समाज में है नहीं. तो जब इन्होंने ऐसा सोचा कि इसको हम कहाँ लेके जाएं, चाहे वो इंजर्ड एनिमल छोटा है या बड़ा है, तब हमने व्यवस्था की. जहाँ तक बात है हमारे हॉस्पिटल की, हम तो उसमें नेचुरली वी आर टेकिंग केयर ऑफ द ह्यूमन हॉस्पिटल्स, ह्यूमन एलिमेंट्स. लेकिन इनका जो करियर रहा, जो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एनिमल्स के लिए बियॉन्ड शेल्टर, बियॉन्ड फूड, बियॉन्ड फॉडर हम जाके काम करें. अगर कोई भी एनिमल कहीं भी इंजर्ड होता है, आज हमारे समाज में कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर कोई गुड समारिटान उसे लेके जा सके. तो वी क्रिएटेड ए सिस्टम कि जहाँ पर हम इंजर्ड और सिक एनिमल को हम हेल्थ केयर दे सकें. ये इनका ब्रेन चाइल्ड था. शुरुआत मुश्किल थी लेकिन लोगों का साथ मिलता गया, भगवान का आशीर्वाद रहा, इनकी ज़िद रही, इनकी जज्बा रहा, और आज हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने में कामयाब हो पाएँ जहाँ पर हम शेल्टर और हेल्थ केयर एनिमल को दे पा रहे हैं. Ladies and gentlemen, Devashraya is not just only rescue. It is medical care. It is rehab. It's system for those souls who cannot speak our language. And it is about sustainability. एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. How do you divide your roles between husband and wife into compassion and also operations, systems and strategy? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया. इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही कहाँ है?
एज ह्यूमन बींग्स हमारे सबके अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं. हाँ जी. हम कंपैशनेट होते हैं. जब हम कंपैशनेट होते हैं तो फिर उसमें एनिमल में और ह्यूमन बींग्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं. I totally agree इफ आई एम with you. कंपैशनेट आई एम कंपैशनेट. इफ आई एम ब्यूटीफुल टुवर्ड्स एवरीवन इन द सोसाइटी. हमारी सोसाइटी तो इंक्लूसिव सोसाइटी रही है. हिंदू धर्म में तो आदमी के अलावा जो भी हमारे आसपास रह रहा है, चाहे वो चूहा है, चमगादड़ है, गधा है, घोड़ा है, गाय है, एवरीवन हैज़ गॉट अ प्लेस इन द सोसाइटी जहाँ पर उसकी केयर होती है. और दूसरा मैं ऐसा मानता हूँ कि हम तो एज ह्यूमन बींग्स वी आर द हाईएस्ट अवार्ड स्पीशीज ऑन अर्थ. Yes. भगवान ने हमारे को इवॉल्व किया, हमें समर्थ बनाया, हमें इंटेलिजेंट बनाया. तो हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स एनिमल्स. इट इज़ नॉट दैट आई एम ओनली बीइंग कंपैशनेट. आई फील मॉरली ऑल्सो कंपेल्ड टू टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड मी, वेदर दे आर एनिमल्स और वेदर दे आर पीपल. Wonderful. सो हम तो एक कॉम्बिनेशन है कि इन माई ह्यूमन हेल्थ केयर एज वेल शी गॉट ए वेरी पिलर लाइक रोल. अब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था. मैं आई एम द आर्किटेक्ट, आई एम ए थिंकर, आई एम ए विजुअलाइजर. शी एग्जीक्यूट्स. So that means strategy is yours. Yes. The forward thinking is yours. The It is execution, combined. the execution It is combined. and मेरा systems are again, as you say, combined and yours. It's wonderful. It's तो absolutely ऐसा नहीं है कि wonderful. हमारे कोई शेयरिंग में मतलब ठीक है मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोच सकता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं. अच्छा. It is a मतलब कि combination. भाभी क्या बोल गए साहब? ये काम सारे ही करते हैं. ऐसा है डॉक्टर साहब, बहुत हॉस्पिटल मदद में से भी और देवाश्रम में भी. And your son also is helping you, Ayush, Yeah. in Devashray. उसके बारे में बताएंगे वो what verticals does he? इट्स बेसिकली फैमिली ओरिएंटेशन. जब हम बात करते हैं ना फैमिली की, तो हमारी पूरी फैमिली ओरिएंटेड टुवर्ड्स देवाश्रय, टुवर्ड्स बीइंग सनातनी, टुवर्ड्स बीइंग हिंदू, टुवर्ड्स बीइंग गिविंग बैक टू सोसाइटी. वेयर एवर एनीबडी कैन पिच इन देयर कॉम्पिटेंसीज, दे पिच इन, वेदर इन आवर ओन हॉस्पिटल और वेदर इन एनिमल हॉस्पिटल. तो हम सब अपनी अपनी कैपेसिटीज जहाँ जहाँ हम खर्च कर सकते हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट, फैमिली एफर्ट. I was reading in Ayush's profile, which describes Devashray as also a regenerative system experiment. Another vertical you have started is from cow dung. You are regenerating, the products. My question was in that respect. पैशन है ना, दरअसल शुरू इन्हीं से हुआ, अंशु जी से शुरू हुआ. हाँ जी. इनका ये मानना रहा है कि NGOs जो काम कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर पे या एनिमल हेल्थ पे या कोई भी NGO, वो ना हमेशा दान पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता. फ्रॉम द कंट्रीब्यूशंस कम्युनिटी से उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता. तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम उस सिस्टम से ही कुछ चीज़ें जनरेट करें और फिर सिस्टम अपने पे खर्च करें. फॉर एग्जांपल हमारे साथ में इशू क्या है कि हमारे पास जितने भी एनिमल्स आते हैं, लार्जर एनिमल्स, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ. फॉर एग्जांपल काउ है, हमारे पास सारी ड्राई काउज होती हैं. हमारे पास में 500 के आसपास ड्राई काउज हैं. और काउस की इकोनॉमी आज तक ऐसा माना गया है कि वो दूध पे डिपेंड करती है. वो दूध देती है तो उसे लोग रखते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है उसको घर से बाहर निकाल देते हैं. और कुछ समय पहले, अभी भी ऐसा होता है चोरी छुपे, दे आर सेंट टू स्लॉटर हाउसेस. हमने ऐसा माना कि सिंस हम हिंदू धर्म में हम गाय से अटैच रहते हैं, गाय हमारे लिए मैटर ऑफ रिलीजन है, उसको माँ के जैसा मानते हैं, तो उसको हम स्लॉटर हाउस नहीं बेच सकते हैं. दूध वो देती नहीं है, तो हाउ टू सस्टेन. तो हमने ऐसा माना कि अगर हम उसके आउटवर्ड गोबर को इस्तेमाल करके अगर ऐसी कोई चीज़ बना सकें कि जहाँ से हम कुछ पैसे इकट्ठे करके उसकी सेवा में वापस लगा सकें, सो दैट वाज अ थॉट प्रोसेस. और इसमें काफ़ी हद तक अंशु जी और बेहतर बता सकेंगी, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाकर कुछ हद तक इस पे ले आए हैं. और आने वाले समय में हमें बहुत विश्वास है कि हम गोबर की इकोनॉमी से गाय को चारा खिला सकेंगे और भी बाकी लोगों की भी मदद कर पाएंगे. वाह. इसी सर आपने बात करी कि जब तक काऊ दूध देती है उसके बाद लोग छोड़ देते हैं. इसी अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन वाज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस इन गोवा सम टाइम अगो. सो आई आस्क्ड हिम, आई सेड यार तेरी तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोस्टिंग दैट यू हैव विद यू, बिकॉज गोवा इज अ पीसफुल प्लेस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज वेरी गुड. आई एम टॉकिंग अबाउट many years ago. He said something which really bothers me even today. He said, Hemant, yes, job-wise there is no problem. He said, my biggest problem is elderly parents, 80s, 85 and 90s who have lost their memory from well-to-do families. उनके बच्चे आके महाराष्ट्र और गोवा बॉर्डर के ऊपर छोड़ देते हैं. He says, this is my biggest problem as a police commissioner because
I am a Hindu, I am a Sanatani, and I am a police officer. It is my duty to take care of them. So that reminded, जब से आपने मेरे को बताया, suddenly I got a flashback. I thought I'll share it with you. It is what you're doing is absolutely wonderful. And again, what a friend of mine, Neeraj, also did, he got in touch with old age homes, started making sure that those elderly people, because they have lost their memory, they do not know where they're coming from. But from their mannerism, from their body language, he could make out they are from good family background. This is what happens in our society. नहीं, जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स के लिए हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी देखभाल करें। ऐसा ही मैं मानता हूँ कि एनिमल जिसने हमारी सारी ज़िंदगी सेवा करी है, अगर वो बूढ़ा हो जाता है या असहाय हो जाता है या लाचार हो जाता है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। इसमें ना कुछ अलग से नहीं है, ये हमारी ह्यूमन जीन्स में है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने एल्डरली पेरेंट्स के बारे में बताया, डेफिनेटली बहुत पेनफुल है। उसमें इसमें एक और चीज़ अगर आप ऐड करेंगे तो वो है वॉइस, कि एल्डरली होने के बावजूद वो अपने दर्द को किसी को बता सकते हैं अगर आप उन्हें कहीं छोड़ भी देंगे। लेकिन अगर आप इन बेजुबानों को देखेंगे तो ये तो कुछ बोल भी नहीं सकते। करेक्ट। मतलब इनको भी छोड़ा जाता है। इनको भी, अगर आपने महाराष्ट्र की बात की तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज भी कई लाख पशु ऐसे हैं जिनके मुंह में गुड़ ठूस के और उनको नदियों में बहाकर बंगाल के दूसरी साइड्स पे लोगों के पास भेजा जाता है कटने के लिए, जहाँ पे इनके ऊपर टैग लगे होते हैं। और वो इतना, अगर आप कभी बंगाल बॉर्डर पे कहीं आपको ठहरने का अवसर मिले तो आप रात को सो भी नहीं पाएंगे उनकी आवाज़ें सुनकर। Oh my God. तो बहुत पेनफुल है। I think our government and or some like-minded people should take out strategy whereby this particular thing is stopped. बेसिकली क्या है कि इन सब के लिए एक बहुत अच्छा साधन है जो आज मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जो हमने इसको बहुत बड़ी समस्या बनाया हुआ है, ये समस्या का समाधान बहुत आसान है। जब तक ये ज़रूरत इनकी रहती है, जैसे बैल थे खेतों में, खेती में काम आते थे तो उसको बेटी की तरह रखा जाता था। गाय हैं, दूध देती थी, माँ की तरह रखा जाता था। अब अनफॉर्चुनेटली जब ट्रैक्टर आए तो बैल बाहर हो गया, बैल बेरोज़गार हो गया। गाय ने दूध देना बंद किया, उसको टीका लगा के बाहर छोड़ दिया गया और या स्लॉटर हाउस भेज दिया गया। तो ऐसे में जो गोबर हमने जो काम किया, वो हमने काम किया गोबर पे। मैं इसके लिए कहती हूँ, जैसे सरोवर होता है तो वहाँ पे हंस को सरोवर में मोती दिखाई देता है और बगुले को मछली दिखाई देती है। तो हमें ये गोबर नहीं दिखाई देता, हमें ये गोधन दिखाई देता है। और इसी पे हमने काम करना स्टार्ट किया आज से 4-5 साल पहले कि हम इसे किस तरह से इसको ब्राउन गोल्ड में तब्दील करें। इसको जैसे कहते हैं कि हम इसको डंग को वेल्थ की तरफ, डंग टू वेल्थ, ऐसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए विद NTPC इन विलेजेस कि इसको हमें डंग को कैसे वेल्थ में हमें कन्वर्ट करना है। तो आज जब हमने गोबर पे काम करना स्टार्ट किया तो हमने इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हम ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, रोटरी के माध्यम से हम उनको मशीनें देते हैं, साथ में उन्हें घर में ही हम उस तरह की ट्रेनिंग दे के प्रोडक्ट्स बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें हवन कप हो गए, छोटे दीपक है, धूप बत्ती हैं, कि वो लाइक जैसे हमारा लिज्जत पापड़ मॉडल है कि आप घरों में ही लेडीज़ को काम दीजिए और वो अपनी अर्निंग का साधन बनाएं। तो इस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट, हम इसके लिए जो आज गोबर से हम जो लकड़ी क्रिएट कर रहे हैं, ब्रिकेट्स बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं। आज बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ हैं जो पेड़ काट के जो लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, फर्नेसेस में डीजल इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है ईंधन का, पेड़ों को बचाने का। तो गोबर से आज इतना काम हो रहा है, हम लकड़ी बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। हमने छोटा सा एक बायोगैस प्लांट भी लगाया है। तो ये मैं इनकी बात को अगर समराइज करना चाहूँ तो आप ऐसा कह सकते हैं कि गोबर से हम मिनी माइक्रो से लेके और लार्जर इंडस्ट्रियल लेवल तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी माइक्रो लेवल पे जैसे मैडम ने बताया कि हम जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं, पूजा के हैं, हवन सामग्री कंप है या धूप बत्ती है या बाकी चीज़ें हैं, वो बना सकते हैं, जिसके लिए हम कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे हम लेडीज़ को एम्प्लॉय कर सकते हैं।
थोड़े बड़े पे जाएँ तो उसे हम ब्रिकेट्स और लकड़ बनाते हैं जो जलाने के काम आती है, और उसकी कैलोरिक वैल्यू है गोबर की, वो इक्विवेलेंट टू कोल ही पहुँच जाती है, तो इसलिए इसमें बहुत इशू नहीं आता है। दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। गोबर एज मैन्योर तो सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। यस। लार्जर लेवल पे अगर हम देखें इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो आजकल CBG का ज़माना है, इट इज़ कंप्रेस्ड बायोगैस। हम गोबर से गैस बनाते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, सिलेंडर्स में भरते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, उनके टैंक बनाते हैं, उनके पंप बनाते हैं, उनसे व्हीकल चलती है, उनसे इंडस्ट्री चलती है, उनसे जनरेटर चलते हैं। तो ये लार्जर लेवल पे है। तो गोबर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो अनलिमिटेड है। फ्रॉम ए स्मॉलर लेवल टू ए लार्ज लेवल यू कैन यूटिलाइज इट। आप सोसाइटी में जिस भी पोजीशन पर हैं, जिस भी स्थिति पर हैं, आप गोबर को कन्वर्ट करके उसको आप इकोनॉमी में ला सकते हैं और चला सकते हैं। केवल एक स्ट्रक्चर सिस्टम को लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, थोड़ी और सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा और अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं जिनसे और बेटर प्रोडक्ट्स और बेटर एफिशिएंसी निकल कर आने वाली है। तो ये एक चेंज शुरू हो चुकी है। आने वाले 4 से 5 से 7 सालों में यू विल सी ए ह्यूज चेंज इन दी इकोनॉमी रिवॉल्विंग अराउंड दिस काउ डंग। मैडम ने तो एक और बात बड़ी बढ़िया टर्म कॉइन किया उन्होंने, कि जैसे हम इकोनॉमी की बात करते हैं, ये कहते हैं काउ इकोनॉमी, काउ नॉमी। तो शी हैज कॉइन्ड ए वर्ड काउ नॉमी, इकोनॉमी रिवॉल्विंग अराउंड काउ। ओके। सो हम ऐसा मानते हैं कि एक सफ़र की शुरुआत हुई है। आने वाले कुछ सालों में इसको और स्ट्रक्चर करके, और साइंटिफिक करके, और एफिशिएंसी बेटर करके हम इस इकोनॉमी को रियल वर्ल्ड में ला के दिखा सकेंगे। फैंटास्टिक। एंड दैट डे वी आर वेटिंग कि उस दिन हमारी गाय कटने के लिए स्लॉटर हाउस में नहीं जाएगी, लोग काऊ को गोबर के लिए भी पालेंगे दूध की जगह। फैंटास्टिक। कहाँ से स्टार्ट हुए आप, क्या थॉट प्रोसेस है, एंड कहाँ आप इसको लेके आएंगे कि जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बन गया है। और ये तो आई वुड से इट इज़ सच अ फैंटास्टिक थिंग। अ लॉट ऑफ अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड. You are doing it in Faridabad. I'm sure this particular model can be copied by everybody doing the same thing. सर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये मॉडल बहुत जगह कॉपी होना शुरू हो गया है ऑल अक्रॉस इंडिया, स्पेशली साउथ में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में. देयर आर मैनी नाउ पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर पैटर्न. वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं पूजा के वो बना रहे हैं, गोबर से गमले बना रहे हैं, गोबर से पेंट बना रहे हैं. हाँ, I was going to ask you the same thing. गोबर से कागज़ बना रहे हैं. हाँ, मैंने गोबर से बायोगैस बना रहे हैं, बड़े बड़े गैस प्लांट लगे हुए हैं, काम चालू हो चुका है. कुछ समय इंतज़ार करने की ज़रूरत है. यू विल फाइंड कि ये चीज़ें रियलिस्टिकली ज़मीन पे नज़र आएंगी. बेसिकली एक समय पर बात होती थी तो ये था कि इन गायों के लिए गौशाला बनाई जाए. जब ये घर से बाहर हुई, बूढ़ी हो गई, तो गवर्नमेंट का था कि भाई जगह जगह गौशाला बनाएं. अब उन गौशालाओं में पॉसिबल ही नहीं है इतनी गायों को रखना और पालना. तो इनके लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम बनाना ही बहुत बड़ा सॉल्यूशन था. जैसे आपसे आपके फ्रेंड ने कहा, तो ये समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है आज की डेट में. मैक्सिमम आप देखेंगे, आप सड़क पर कूड़ा कचरा खाती हुई गायों को, कि जगह जगह बहुत ज़्यादा भूखी प्यासी. मैंने बहुत सारी गाय ऐसी रेस्क्यू की जिनके पेट में, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी कुछ साल पहले मैंने जब इस गाय को रेस्क्यू किया था, उसके पेट में से 71 kg स्क्रूज, कांच, प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, मतलब उसमें कचरा भरा हुआ था बेहिसाब. Oh my God. और जब आप उस तरफ देखेंगे तो इस कदर हालात ख़राब है कि आज उसको लेकर के उतनी सेंसिटाइज होना समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में से, हम अपने एफ़र्ट्स, ऐसे छोटे छोटे एफ़र्ट्स से इनकी जीविका चला सके. उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन एक ही है कि इनको कैसे यूज़फुल बनाएं. तो जो काउनॉमी का जिक्र किया हमने, तो आज आपको अगर मैं छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ. एक गाय दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती है. उसको हमने जब इस्तेमाल किया तो हमने उससे छोटे छोटे हम हवन कप बनाते हैं. उस कप के अंदर में गूगल है, लुवान है, कपूर है, कि छोटा सा एक हवन आप अपना आराम से मंदिर में बैठ के कर सकते हैं. वो एक कप 8 से 10 रुपये का कॉस्ट करता है. और एक दिन के गाय के गोबर से आप 1000 कप वो बना सकते हैं. यानी कि एक दिन में आप 8 से 10 हज़ार का प्रोडक्ट एक गाय के गोबर से आप तैयार कर सकते हैं. यानी कि एक महीने में आप 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट तैयार होता है. कौन गाय को काटेगा, कौन गाय को सड़क पर छोड़ेगा? Nobody. अब इस चीज़ को लाने तक आज ये आपका बहुत अच्छा माध्यम है कि लोगों तक ये बात समझ में आए कि हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि एक एक गाय लोगों को गौधन की तरह दिखाई दे
और जिस तरह से हमारे समाज में हमारे सनातन धर्म में इसको पूजा गया है, तो इसका जो गौ विज्ञान है बहुत अलग असीमित है। तो कोई गाय को सड़क पे छोड़ेगा, मैं नहीं मानती। तो हमारा यही है कि इसको दान पे मत डालो, मतलब इसको ये भार नहीं, ये आधार है, इसको दान नहीं, इसको सम्मान मिले। तो उसी पे हमारी कोशिश है। देखिए, फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि यू नो हाउ दिस पर्टिकुलर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम टेकिंग केयर, नाउ इट इज़ बिकम अ फुल फ्लेजेड बिजनेस मॉडल। अकॉर्डिंग टू मी, आपको ये एक नेशनल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल्स के ऊपर ये मॉडल को एडवर्टाइज करना चाहिए, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ फिगर्स कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और इतना, जैसे कि आपने बोला कि 10-15 किलो गोबर आता है, उससे आप 8,000 रुपीज़ जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप पेंट के बारे में भी कुछ बता रहे थे सर, उसके बारे में बताइए प्लीज़। पहले तो मैं जो आपने स्टेट लेवल की बात की, मॉडल बनाने वाली बात है, किसी भी आइडिया के पिकअप होने के 3 स्टेजेस होते हैं। पहले वो आइडिया रिडिक्यूल होता है, फिर एक्सेप्ट होता है, फिर अपलॉड होता है। राइट। हम शायद इस आइडिया के रिडिक्यूल होने के बाद में एक्सेप्ट होने के मोड पर हैं कि जहां लोगों ने अब हमारी बात को सुनना शुरू किया है, क्योंकि हम करके दिखा रहे हैं। और आज से 4 साल बाद ये अपलॉड हो रहा होगा, पक्की बात है। और रही बात पेंट की, पेंट इज़ अ सक्सेसफुल मॉडल। हम हमारी गौशाला में एक हिस्से में हमने छोटी सी यूनिट लगाई हुई है जहाँ पर हम पेंट बना रहे हैं। ये पेंट बहुत ही शानदार पेंट बनकर निकल कर आया है और इसकी कई सारी वेराइटीज़ हैं, जिसमें एक रूटीन OBD डिस्टेम्पर है, इमल्शन पेंट है, एंड इट कैन बीट एनी गुड ब्रांड ऑन ऑल दी एस्पेक्ट्स। और हमारे पास में हमने अच्छी लेबॉरेटरी से टेस्ट कराकर इसको एक इको फ्रेंडली पेंट का लेबल दिया है। हमारी अपने सारे घर और हमारी अपनी सारी बिल्डिंगें इसी से पेंट होती हैं। एंड वी हैव टेकन कॉन्ट्रैक्ट्स इन मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर लार्ज सोसाइटीज़ एंड लार्ज बिल्डिंग्स जहाँ पर ये पेंट इस्तेमाल हो रहा है। इफ़ आई एम अलाउड टू यूज़ सर्टेन नेम्स, तो हमारे बड़े सारे जो गुड़गांव की भी ऐसी मल्टीपल सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर हमारा पेंट लग रहा है। फरीदाबाद की बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये पेंट लग रहा है। हाँ, इसको हम अभी रिटेल में यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि बल्क बाइंग में हमारा एफर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। इट इज़ ईजी टू कन्विंस अ पर्सन, सीइंग इज़ बिलीविंग। हम आपको पेंट लगा के दिखाएंगे, उसकी टेस्टिंग करा के दिखाएंगे, कलर कम्बिनेशन बना के दिखाएंगे। नाउ दिस इज इंडोर पेंट्स और आउटडोर पेंट्स? इट इज़ बोथ इंडोर एज वेल एज आउटडोर। हम इसको इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों के लिए यूज़ करते हैं। इंटीरियर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक्सटीरियर में भी इस्तेमाल होता है। ये गोबर से बना हुआ पेंट है। अच्छा, बेसिकली हम लोग जो पेंट अभी हम लोगों ने R&D किया है वो वाटर बेस्ड है। तो हमारे पास एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। साथ में हमारे पास जो हमने सॉफ्टवेयर हमारे पास में है, तो उसमें आप 200 टाइप्स ऑफ कलर, जो भी आप किसी अच्छे ब्रांड्स में आपको कलर चाहिए होता है, वो कलर हम भी अपने इस जो पेंट तैयार कर रहे हैं, हम उसमें वो कलर आपको तैयार करके दे सकते हैं। MDH में पूरा वो लोग भी बहुत अच्छे बड़े गौ भक्त हैं और मानते हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो आज उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हमारा ये जो इको फ्रेंडली पेंट है ये जा रहा है। बेसिकली इस पेंट के पीछे एक ही सोच है कि ये हमने तैयार किया था इन बेजुबानों की जीविका के लिए, कि इनके लिए हमें कोई ऐसा बिजनेस तैयार करें कि व्यापार भी और साथ में परोपकार भी। तो ये पूरी तरह डेडिकेटेड है कि इससे होने वाले जितने प्रॉफिट्स हैं वो इन गायों के शेल्टर्स में, इन गायों के चारे के लिए और जितना भी बेजुबान है, नॉट ओनली गाय, उनके लिए ये इस्तेमाल किया जाए। तो इस बिज़नेस को उस तरीके के शेप देने की कोशिश की जा रही है कि हर शहर में, हर जगह पे जहाँ पर भी गौशाला है वहाँ पे हम काउडंग से पेंट तैयार करें और वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। हाउ इफ कॉस्ट इफेक्टिव इज दिस काइंड ऑफ पेंट? From a customer perspective, it is much cheaper as compared to standard brands and it delivers better than any other brand. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। गोसाई साहब का घर हमने पेंट कराया, he was very happy with the paint and it costed him almost around 40% less than the standard brands. Is that right? इनके पेंटर भी बड़े खुश हुए, साहब बहुत अच्छा पेंट ला के दिया आपने हमारे को, हमारे हाथ पैरों में दिक्कत नहीं आती, आंखों में जलन नहीं होती है, अच्छा पेंट कर सकते हैं, कवरेज भी बेटर है, ठंडक भी लगती है, देखने को मतलब फील भी आती है अच्छी सी, और हम एक पुण्य का काम भी कर रहे हैं। एंड इट इज एट नो लेस क्वालिटी देन एनी स्टैंडर्ड ब्रांड इन द कंट्री। वाओ, तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग है, यू कैन टॉक टू पीपल। आप मेरी फैक्ट्री तो करवाई दीजिए। इन माने सर इट्स अबाउट 45-50,000 स्क्वायर फीट, तो आप तो वो तो करवाई दीजिए बिल्कुल। डेफिनेटली, और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, डेफिनेटली।
Well, ladies and gentlemen, if you also have plans to paint your house and things like that, can you imagine? It'll cost you 40% less, and it is going to go for the benefit of those voiceless, silent souls. Let's talk to the next question. How do you see your work in the hospital systems connected to similar kind of systems do you have with that, or we are separate? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. मैं तो इसकी वेट ही कर रहा था क्वेश्चन की. क्या तो एनिमल हॉस्पिटल भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कोई भी ह्यूमन हॉस्पिटल काम करता है. बीमार तो बीमार ही है, सब्जेक्ट की स्पीसीज चेंज हो गई है. इंस्टेड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग ही इज़ एन एनिमल, बट उसके एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वो सब वैसे ही काम करती है. वी गॉट अ टीम ऑफ डॉक्टर्स हु आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक, हु आर ऑन कॉल. देयर आर पैरा वेट्स, जैसे हम पैरामेडिक्स कहते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री में उनको हम पैरा वेट्स कहते हैं. द टीम इज नाइसली ट्रेन्ड टू हैंडल ऑल द सिक एनिमल्स. We got two category of doctors, one for the larger animals, that is buffalo and this cow and buffalo, and one for the dogs and cats and other things. Random जो animals हैं like peacock है या monkey है, उनको भी हम ट्रीट करते हैं. पर बाय एंड लार्ज ये दो सेक्शंस ऐसे हैं जो मेजॉरिटी 90% काम इन दोनों में होता है. अच्छा. एंड वी हैव गॉट गुड डायग्नोस्टिक टूल्स विद अस. वी हैव गॉट एक्सरे मशीन, वी हैव गॉट अल्ट्रासाउंड मशीन, वी हैव गॉट ऑपरेशन थिएटर. तो सारा काम वैसे ही होता है और हम कोशिश कर रहे हैं उसको वैसे ही स्ट्रक्चर करने की. फॉर एग्जांपल आज हमारा हॉस्पिटल NABH पद्धति पे काम करता है जिसमें हम सारा काम सिस्टमेटिकली काम करते हैं. हमने वो सिस्टम रेप्लिकेट किया है एनिमल हॉस्पिटल में. उतनी ही सफाई रखते हैं, उतना ही साफ रखते हैं और उतने ही सिस्टम स्ट्रक्चर से काम करते हैं. वैसे ही रिकॉर्ड कीपिंग होती है. ऑल्दो वरना नाम नहीं बता सकता, टैग लगा देते हैं उसको. उस तरह सिस्टम से काम करते हैं. ड्रग्स का अकाउंटेबिलिटी वैसे ही रहती है जैसी बाकी रहती है. The only probably the difference is you ask or interact with humans कि आप कैसे हो, दवाई काम कर रही कि नहीं कर रही. In the other hospital, the animal hospital, you got to have a very strong intuition. हाँ, वो जैसे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को हम डील करते हैं ना, तो जो वेट डॉक्टर होता है ना, they can talk to the animals, they understand the animals. Really? तो जैसे हम बच्चों को समझते हैं बिना बताए, बच्चा बोल नहीं सकता ना, Correct. फिर भी उसकी तकलीफ समझते हैं, उसकी खुशी समझते हैं. तो जो वेटरनरी डॉक्टर होता है ना, ही कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द एनिमल्स, बोथ लार्ज एज वेल एज स्मॉल एनिमल्स. एंड आई वेरी श्योर अगर आप भी कभी जाओ, कम से कम तकलीफ तो चेहरे पर सब पे दिखाई देती है. और जब आराम मिल जाता है वो भी दिखाई देता है. What parallels do you see between humane healthcare for humans and humane healthcare for animals? See, it is absolutely same. It has to be human in any case. और अगर मैं किसी एनिमल को मैं एक सब्जेक्ट मान लूँ, वो लिविंग है, उसके अंदर जान है, प्राण है, इमोशंस हैं. जगदीश बसु ने ये भी कहा था कि प्लांट्स में भी जान होती है, उसमें सेंसिटिविटी होती है. तो एनिमल तो बता भी सकता है, बोल भी सकता है, क्राई भी कर सकता है, आंसू भी दिखा सकता है और कुछ भी हो सकता है. तो हमें उतनी ही अच्छी अप्रोच से एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए. एनिमल लवर्स मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे अंदर जो भाव है ना, अगर वो ह्यूमन नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एनिमल के लिए भी नहीं कर पाएंगे. तो भाव तो आप कभी जैसे भाव देना चाहते हैं तो आप कभी देवाश्रय आए तो आप ये देखिए कि जब मैं एंटर करती हूँ तो वहाँ पे जितने भी डॉग्स, कैट्स, यहाँ तक कि डंकी जो ठीक हो गए हैं, बंदर, जब मैं ऑफिस में मीटिंग करती हूँ तो वहाँ पे मेरे थोड़ी देर बाद चेयर के आसपास कैट्स, डॉग्स, बंदर वो सब आगे धीरे धीरे उनको पता चल जाता है कि भाई टेक केयर ऑफ देम इज कि मैं पहुंच गई. मतलब मेरे ऑफिस में मेरे पास जो मेरे 4 मेरे अगर बंदे होते हैं जो काम करने वाले होते हैं तो वहाँ पे 20 वहाँ पे डॉग्स, कैट्स और बाकी लोग बैठे होते हैं जो मीटिंग का हिस्सा होते हैं. मतलब वो अपने वो जो फीलिंग्स हैं, अपना जो लव है, वो जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए वो सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है. वाह. मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब डेली जाती हूँ देवाश्रय विज़िट करने तो हमने पीछे एक डंकी उठाया था तो वो बहुत ही ख़राब हालत में था. उसके दोनों पैर किसी ने बांध के छोड़ दिए थे तो वो चल फिर भी नहीं पा रहा था. उसके पैरों में बुरी तरह से जख्म हो गए थे. तो जब मुझे किसी ने कॉल किया तो हमने उसको रेस्क्यू किया, उसको ठीक किया. तो वो वहाँ पे अपना आराम से घूमता है. तो मैं निकल रही थी तो निकलते हुए मेरे को लड़के ने बोला कि मैम 2 मिनट रुक जाइए. मैं कहा पता नहीं, मैं खड़ी हो गई इंतज़ार करती रही. तो वो पता लगा वो जो डंकी था वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा था मेरे से मिलने के लिए. तो वो बेचारा जब तक आता था मैं निकल जाती थी. तो उस दिन मेरे पैरावेट ने मुझको रोका. फिर वो आया मेरे पास आके खड़ा हो गया खाली. मतलब उसने कुछ कहा नहीं पर जो उसकी फीलिंग या
चीज़ थी वो इतना इमोशनल थी कि वो भी उतनी ही फीलिंग्स अपने मन में रखते हैं. Wow, it's absolutely unbelievable, and it's so wonderful to hear that. Yes, people, few people who are involved in such a beautiful work, they have an emotional bond. Only because of the emotional bond, people can understand कि आप हॉस्पिटल में आ गए या ऑफिस में आ गए तो आपके यस मतलब उन तक वो न्यूज़ कैसे पहुंचती है, कैसे वो फील करते हैं, मुझे नहीं पता चलता, पर मैं देख के बड़ा आश्चर्य करती हूँ. आपको एक और मैं बहुत अच्छी बात बताती हूँ, एक घटना सुनाती हूँ. मैं एक बार काम कर रही थी ऑफिस में देवाश्रय में, तो चाय समोसा थोड़ी देर हो गई, जैसे सब बच्चों के लिए मैंने मंगाया, तो एक हमने लाली को रेस्क्यू किया था सूरजकुंड से. उसको बिजली का शॉट लगा था, तो उसका दोनों हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं था. बंदर जब मंकी था, तो वो भी अपना आ गया, टेबल पे आके बैठा, तो उसने इशारा किया समोसे के लिए. मैंने उसको समोसा दिया. उसके बाद उसने मेरे को इशारा किया कि चटनी, कि मुझे चटनी भी चाहिए. उसने वो चटनी लगा के बकायदा समोसा खाया. फिर उसने मेरे कंधे पे बैठ के मेरे बालों को अच्छी तरह से उसने मेरी मसाज की, मेरे बालों में हाथ फेरा, कि मतलब उसने वो पूरा लव मुझे दिखाया कि हमें. तो आपने उसको चाय नहीं पिलाई? नहीं, मैं उसको चाय नहीं, वो चाय नहीं मांगी उसने समोसा चटनी के साथ मांगा मेरे से. Rakesh ji, you are also a Rotarian, and you are also, a healer. As a, you are heal not only humans, you also heal husband and wife, even those voiceless souls, which is so beautiful. And you also do a lot of participation in Rotary. How do you keep the balance between, your projects which are dear to you, your healing humans or animals is as passionate, but you are also a very passionate Rotarian? बहुत सही कहा आपने कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग होता है या प्रोफेशनल होता है, उसकी ज़िंदगी के बड़े सारे फैसेट्स होते हैं. तो उन फैसेट्स को बैलेंस करना ही हमारा काम होता है. तो हमें बड़े सारे रोल प्ले करने होते हैं. तो यहाँ पर मेजर रोल प्ले 3 ही हैं. एज ए रोटेरियन, वट एवर आई कैन डू, आई एन्जॉय दैट, आई लव दैट, आई एम पैशनेट अबाउट इट. तो जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट होते हो, टाइम हमेशा निकल जाता है. ह्यूमन हेल्थ केयर हैज़ बीन इन माई ब्लड सिंस माई चाइल्डहुड. जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, प्रैक्टिस में आया. शुरू में बड़ी मेहनत हाथ से करनी पड़ती थी, अब डायरेक्शन से करनी पड़ती है, मैनेजमेंट से करनी पड़ती है. वो हम कर रहे हैं. उसमें सिस्टम्स इवॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे डेलीगेट कर रहे हैं. तो सोचने का और डायरेक्शन का काम रह जाता है. और एनिमल हेल्थ पे 99% काम तो अंशु जी कर रही हैं. हम तो मॉरली इनके साथ में खड़े हुए हैं कि जो आप करो हम आपके साथ हैं. आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर स्किल्स वी हैव गॉट, वी लाइक टू शेयर दोज. बट एनिमल हेल्थ पे मेजॉरिटी काम अंशु मैडम करती हैं. फैंटास्टिक. हम बीइंग स्पाउस, बीइंग फैमिली मेम्बर्स, हम इनके साथ टोटल खड़े हुए हैं. बट entire credit and the things, they go to her only. Fabulous. Your family also is known for saving the environment. आपने तपोवन मियावाकी फॉरेस्टेशन के ऊपर काफ़ी काम किया है, उसके बारे में प्लीज़ बताएं. एनवायरनमेंट हैज़ बीन आवर पैशन, और अंश मैडम ने बहुत काम किया है. लास्ट ईयर मियावाकी हमारे संपर्क में एक सिस्टम आया. तो माई यंगर सन दिव्यानु, ही प्लांटेड अ मियावाकी फॉरेस्ट इन आवर ओन सेक्टर, कम्युनिटी सेंटर. इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ. 1 फरवरी को हमने इसको इनॉग्रेट किया था, एंड टुडे इट इज़ अ बिग जंगल. मियावाकी कॉन्सेप्ट ना मिनी फॉरेस्ट को लेकर है. एंड दे क्लेम कि जब ये फॉरेस्ट पूरा 3 साल में डेवलप हो जाएगा तो आपके इलाके का टेम्परेचर 2 डिग्री से फ़र्क आ जाएगा एनवायरनमेंट का, अदर देन क्लीनिंग द एयर. तो इस तरह के हम एक्टिविटीज़, देखिए रूटीन में प्लांटेशन रूटीन में होती रहती है. वहाँ पर मेरा कहना इतना ही रहता है दैट वी शुड प्लांट ट्रीज ओनली, वी शुड नर्चर देम. अगर मैं किसी प्लांट को 3 साल नर्चर नहीं कर सकता, जब तक वो समर्थ नहीं हो जाता और मैं उसकी बाउंड्री वॉल नहीं हटा सकता, तब तक मुझे छोड़ना नहीं चाहिए. सड़कों पे प्लांट्स लगाने का या प्लांट लगा के छोड़ देने का कोई फायदा नहीं है, कोई पर्पस नहीं है. अनलेस आई कैन नर्चर ए प्लांट, आई शुड अडॉप्ट ए ट्री. अगर किसी ने लगा दिया, आप अडॉप्ट कर लीजिए उसको. करेक्ट. 3 साल तक जब तक वो समर्थ नहीं हो जाता, छोटा बच्चा होता है ना, उसको नर्चर करना पड़ता है जब तक वो अपने आप अपने लायक नहीं हो जाता. तो एनवायरनमेंट में हमारा काम यही. अदर देन एनवायरनमेंट, जो दूसरा अंशु मैडम का एक इनिशिएटिव रहा है वो है ज़ीरो वेस्ट. हाँ, हमारे सेक्टर में ज़ीरो वेस्ट पे काम करना शुरू किया है. और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंशु मैडम से एनवायरनमेंट की हेल्प के लिए ज़ीरो वेस्ट पे बात करें. हाँ, उसके ऊपर प्लीज़ हमारे को बताएं.
बेसिकली क्या लास्ट ईयर जब हम लोग रोटेरियंस एज प्रेसिडेंट जब मैंने रोटरी में स्टार्ट किया था, तो जैसे पैशन रहा है, मैं गायों पे काम कर रही थी, तो इसी के साथ मैंने जोड़ा था एनवायरनमेंट। गायों पे काम करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा एक इंक्लिनेशन था मेरा, तो हम गाय के गोबर पे काम कर रहे थे कि कैसे हमने उसको वेस्ट को बेस्ट में बदला। तो इसी तरह से काम करते हुए हम जीरो वेस्ट पे गए कि आज हमारे घरों से जो कचरा निकलता है वो कचरा नहीं कंचन है। उसको उस पर हमने अपने सेक्टर के अंदर में अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए और हमने सोचा कि हमारे शहर में सबसे पहला हम अपने सेक्टर को ज़ीरो वेस्ट बनाएं। तो एक बड़ा छोटा सा प्रयास है। हमने अपने घरों से स्टार्ट ये किया कि आप जितना भी वेस्ट निकालते हैं उसको आप बजाय कूड़ा बनाने के, जो खाने की वस्तु है, जो सब्जियां हैं, छिलके, जो खाना जानवर खा सकते हैं, उनको आप अपने खाना उनको जानवरों के लिए दिया जाए। बाकी जो प्याज के छिलके, अंडे हैं, उनसे खाद बनाना, कैसे खाद बना सकते हैं जो रिसाइकिल हो सकता है। जितना भी आपके घर से प्लास्टिक पेपर निकलता है जो रिसाइकिल हो सकता है, उसको अलग बिन में डालें। तो हमारा ये था कि अपने घर में हम 3 बिन रखें और अपने कूड़े को अलग करें। और ये काम घर का कोई मतलब कोई लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता, ये काम होगा हेल्पर से। उसके लिए हमने हेल्पर्स को मोटिवेट किया कि आप जितना भी घर में कचरा है, अगर आप इसको अलग करके डिस्पोज करेंगे तो जो भी रिसाइकलिंग वाला कचरा इकट्ठा होता था उसमें अगर उन्होंने महीने में 500 या 700 रुपये का इकट्ठा किया सामान, तो उसमें उतना ही पैसा मैं उनको डाल के कि अब तुम्हारी पार्टी है, इसमें आप जो लेना चाहो। तो पता चला कि थोड़े टाइम बाद घर में हमसे ज़्यादा जो हमारे हेल्पर्स थे वो कीन रहते थे कि जो रैपर आए हैं, जो पैकेट्स आए हैं, जो पॉलीथीन्स आए हैं, उनको वो अपने स्टोरेज में रखते थे कि भाई ये मेरा बैंक है। और मंथ के एंड में उनको जो पैसा मिलता था उतना ही हम उनको रिवॉर्ड के तौर पे। तो ये धीरे धीरे आज मैं कह सकती हूँ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो अपने अपने सेक्टर्स को ज़ीरो वेस्ट पे काम कर रहे हैं। अभी हमने अपनी सेक्टर की गवर्निंग बॉडी में रिव्यू किया था, तो उन्होंने हमें इंश्योर किया कि सेग्रीगेशन 100% हो रही है, कंपोस्टिंग बहुत ढंग से हो रही है, कंपोस्टिंग से जो खाद मिल रही है वो हमारे ही लॉन्स में, हमारी कम्युनिटी पार्क वापस आ रही है। और रिसाइकलिंग वाला हम उसको छोड़ देते हैं, जो ले जाए रिसाइकलर वाला बंदा ले जाए, हमारे सेक्टर से निकल जानी चाहिए बस ये। और वो कॉमन लैंडफिल में जानी नहीं चाहिए। हम कहते हैं एक और बंदवाड़ी पैदा नहीं होना चाहिए। लेट्स नॉट कंट्रीब्यूट बंदवाड़ी। ट्रू। हाँ, उसको हम ख़त्म कर दें वहीं पर ही कि बंदवाड़ी जाने लगे कुछ ना बचे। फैंटास्टिक। मैं एनवायरनमेंट के लिए आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हम जब गायों पे बात कर रहे हैं, जब हम गौ विज्ञान की बात करते हैं, और जो हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को जितना पूजा है, ये शायद अगर हम गाय को एक महत्व को समझ लें तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट इसके चारों तरफ घूमता है। आप ये देखिए कि गाय का जो गोबर है उससे जो खाद बनती है, हम जितना आज खा रहे हैं खाना, अनाज, और जितना केमिकल है उसके अंदर, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, आज अगर हम वापस अपनी देसी खेती की तरफ चले जाएं, जिस पे हमारा कोशिश है, हमने पीछे फार्मर्स के साथ मिलके काफ़ी सारी इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनिक फूड, पेस्टिसाइड वगैरह नहीं आएगा। आज ये बाहर से शब्द आया ऑर्गेनिक क्या है? हम तो शुरू से ऑर्गेनिक करते आ रहे हैं। तो आज अगर हम वापस से गोबर से खेती पे जाएं तो दोबारा से धरती में जान पड़ेगी। आपको आश्चर्य होगा कि धरती के अंदर कुछ भी फर्टाइल नहीं बचा। जो पहले हमें एक सेब से मिलता था, जो 10 सेब खाने से भी आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते बिकॉज ऑफ ये केमिकल्स। तो हमें अगर एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपने पशुओं को, गायों को बचाना होगा। इनके गोबर से जो खेती होंगी उससे हमारा आने वाले वंश स्वस्थ होंगे। जो इसके गोबर से हम जो पेड़ बचाएंगे, जो लकड़ियाँ कटती हैं इतनी क्रिमेशंस में, होली में, लोहड़ी पर, या फैक्ट्रियों में जो फर्नेसेस चलती हैं, वहाँ पे ये इसका बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है गोबर। जितना पेपर हम लोग यूज़ करते हैं, इससे इतना अच्छा पेपर हम लोग बनाते हैं गोबर से कि वो पेपर लिखने का काम आएगा। तो ये गाय पर्यावरण की धुरी है। इसको अगर गाय को आप बचा लेते हैं तो पर्यावरण वैसे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो वृक्ष हम बचाते हैं, तो जो आज हम लगाने की बात कर रहे हैं, पहले जो लगे हुए हैं उनको बचाएं। ट्रू। एनी मैसेज फॉर our fellow Rotarians, our fellow listeners, any message from you, sir, and from you, ma'am? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितना मैं 3-4 सालों में काम किया, अगर जो हमारे
पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वहाँ से कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी ज़रूर बननी चाहिए कि जहाँ पर इनके एनिमल्स के लिए, इनकी प्रोटेक्शंस के लिए जो लॉज हैं वो उस तरह से इम्प्लीमेंट हो कि हम इनको सेव कर सकें। इनके लिए अच्छे शेल्टर्स होने चाहिए। आज हम सुबह उठते हैं, हमें तैयार ब्रेकफास्ट मिलता है, ये जब सुबह निकलते हैं तो इनके लिए कहीं कुछ ऐसा व्यवस्था समाज में नहीं रही। पहले समाज में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से घरों के बाहर खोर होती थी, जितना घर में से खाना होता था इनके लिए हमारे रसोइयों में, हमारे घरों में खाना होता था। एक खोर में पानी डालते थे, एक खोर में खाना डालते थे। अब अगर आप देखेंगे सोसाइटीज़ हो गई, क्लोज गेटेड है, किसी सोसाइटी में कोई पशु न घुस जाए। इनकी जो गौचर भूमि होती थी, कोई वो गौचर भूमि नहीं है, कहीं पोखर तालाब नहीं बचे। बिल्कुल अगर गर्मियों में आप देखें तो ये बिल्कुल भूखे प्यासे। तो मेरा ये कहना है कि हमें इनकी भूख प्यास को, इनकी जो बेज़ुबानी है उसको समझना होगा। इनके लिए भी हमें कोई ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहाँ इनके लिए हम अच्छे शेल्टर्स बनाएं, इनके खाने के लिए प्रॉपर अरेंज करें, इनके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाएं। इनके साथ जो क्रूएलिटी होती है उसको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। साथ में जो संस्थाएं या एनजीओज़ इस पे काम करना चाहती हैं, इनके स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, तो आज एक इंसान तो रोकथाम कर सकता है बच्चे होने पर। इनके लिए हमारे को कहीं ना कहीं जो ऐसी संस्थाएं जुड़ना पड़ेगा जहाँ पे हम इनको प्रॉपर स्टेरिलाइज कराएं। तो छोटे छोटे प्रयासों से मैं समझती हूँ कि टू माई फेलो रोटेरियंस, मैं तो ये कहना चाहूँगा, बीइंग रोटेरियंस हम सब बड़े कंपैशनेट होते हैं, तो हमको एनिमल कंपैशनेट होने के साथ साथ थोड़ा सेंसिटाइज होना पड़ेगा। कभी कभी बातचीत में ऐसा लगता है अगर किसी एनिमल को चोट लग जाए तो मुंह से निकलता है सो वॉट। तो सो वॉट से निकलकर बीइंग ह्यूमंस, बीइंग रोटेरियंस, जितनी जिम्मेवारी हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स के लिए है, लगभग उतनी जिम्मेवारी और सेंसिटिविटी हमको हमारे एनिमल्स के लिए होनी चाहिए। चाहे वो सिंपल कैट है, डॉग है, स्ट्रे एनिमल है। एक छोटी सी बात और सी लगेगी, पेट एनिमल का तो पूरा ध्यान रखते हैं, उसको तो हम बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, स्ट्रे को क्यों नहीं। तो लेट्स इक्वेट बोथ पेट एज वेल एज स्ट्रे। अगर मैं अपने पेट को प्यार कर सकता हूँ तो उसका थोड़ा हिस्सा तो मैं स्ट्रे को भी दे सकता हूँ। ट्रू, एब्सोल्युटली। तो स्ट्रे एनिमल्स के लिए जो हमारी सेंसिटिविटी है वो थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए। चाहे वो कोई स्ट्रे एनिमल इंजर्ड हो, सिक हो, उसको नियरेस्ट अवेलेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी में अवेलेबल हैं, जैसे देवाशर हमारे पास में और भी होंगी, तो ढूंढ के रखें। जैसे हम एक हेल्पलाइन नंबर रखते हैं इमरजेंसी में ह्यूमन बींग्स के लिए, एक हेल्पलाइन नंबर हम एनिमल्स के लिए भी रखें इमरजेंसी में, कि अगर मुझे कहीं कोई सिक या इंजर्ड एनिमल मिले तो मुझे पता होना चाहिए उसे मुझे कहाँ लेके जाना है। Anshu ji and Dr. Saab, thank you so much for reminding us that service is not only about helping, but about building systems that outlive us. Your work shows that compassion can be institutional and social change can be regenerative. On behalf of the entire True Rotarian community, thank you for being voice for the voiceless and for reimagining what social leadership can do. Ladies and gentlemen, if you like today's podcast, then please do subscribe, share and like the video. And if you also have a story to tell, please do get in touch with us and we will invite you to a show. Thank you and Jai Hind.